Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 10 of laser posting. In last session we completed example number 5 that was related to the sum of the entries of debit credit with the more than 2, and some of the entries are common of the simple entries. We post them in our regular basis and also as per the method number 2. So now today I am going to start the another example that is related to the combined journal entry. Also some of the entries are separate too. So let's start with the example number 6. Here it is. In the book of Panchal Stores, write journal entries for the following transactions. Draw the necessary accounts in the ledger and post them accordingly. So here we have to prepare first of all journal entries. So we have to prepare the journal, and then after ledger, and lastly we have to post them accordingly as per the journal. 2016 April 1st, cash rupees 40,000 and furniture of rupees 20,000 brought in business. So here we started the business on April 1st, and we brought cash and furniture in the business, that is through the capital. First entry here, journal of Panchal Stores, date particulars debit credit. The first entry 2016 April 1st, cash comes in, cash account debited, the amount which is brought in the business, that is 40,000. Furniture comes in, so as per our rule, debit what comes in, debit credit what goes out, furniture comes in, that is our asset. So asset comes in of rupees 20,000, furniture हमने लिख दिया 20,000 का 2. Here brought into business, यानी अभी अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया ऐसा समझकर हम लाएंगे 2 from the our own capital. So to capital account, total amount that is 60,000. Right? Don't forget to write down being brought cash and furniture in business. So here we brought cash and furniture in the business, that is the entry number 1 of April 1st. Move to the next one, second one, April 2. Goods of rupees 36,000 are sold to Dhaval Stores at 10% trade discount. So here we sold goods to Dhaval Stores. Okay, trade discount is given, it will be not recorded in the books of account. For this, Dhaval Stores has paid a cash rupees 15,000. तो यहाँ पर हमने 36,000 के गुड्स धवल को बेचे हैं, उसके सामने हमने पैसे रिसीव किए उससे, यानी डेटर्स से हमने पैसे लिए हैं 15,000, यानी ये हाफ ट्रांजेक्शन कैश है और हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स रिसीव्ड बाय द धवल स्टोर्स, कितने के गुड्स उसके पास आएंगे, कितने की कैश आएगी, वो पहले ढूंढ लेते हैं. 36,000 के 10%, दैट इज 3,600. right? So you have to deduct that amount from the 36,000, so you will get 32,400. right? तो आपको 32,400 के गुड्स होंगे जिसके सामने हमने कैश रिसीव किया है. राइट, दैट इज अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000. बाकी के जो अमाउंट रहे, राइट, 32,400 माइनस 15 अमाउंट रहेगा 17,400. राइट, सो वो अमाउंट हमें धवल के नाम से लिखनी पड़ेगी, दैट इज अवर डाटा. Okay, so let's give the entry number 2, April 2 here. Okay, so first of all cash comes in, cash account debited. Right, cash account debited. कितनी कैश आती है, that is 15,000 rupees. ओके, धवल स्टोर के नाम से जो हमारा डेटा है उसके बाकी रहती जो भी अमाउंट है, धवल stores account, that is 32,000 minus 15,000, so we can say that is 17,400. 2 goods goes out, sales account 32,400. ये कैसे आए, 36,000 माइनस 3,600 10% ट्रेड डिस्काउंट के तौर पर. राइट, वो हम लिखते नहीं है, आपको मालूम है, एज पर द रूल ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. राइट, बीइंग goods sold at 10%
trade discount. You can write down to double, right? Cash receipt of rupees 15,000, that is the अगर ये कॉमन सब कुछ है, अब जनरल में आप सीख चुके हो, यहाँ पर एडवांस लेवल पर हम उसको नहीं लिखते. ओके, सो कीप इन माइंड दैट वन. नेक्स्ट वन, ये खत्म हुआ नंबर 2, दैट इज अप्रैल 2. नाउ अप्रैल 3, रुपीज़ 18,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक. कॉन्ट्रा अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर बैंक इज द रिसीवर बिकॉज बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, कैश गोज आउट. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट अप्रैल 3. बैंक अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू कैश गोज आउट 18,000. तो सिंपली बैंक इज द रिसीवर, कैश गोज आउट. बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो यहाँ हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में. दैट्स ऑल. यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ ये, राइट, क्योंकि ड्यू टू स्पेस. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट. हमारा बैलेंस जो आएगा वी हैव टू राइट डाउन हियर. देख लेते हैं बैलेंस कितना है. 40 + 20 60, 60 + 32,400, दैट इज 92,400 + 8 1 लाख, राइट, प्लस 10, तो 1,10,400, 1,10,400. मेक इट क्रॉस चेक. 1,10,400, 400, यस एक्जैक्टली. सो इसे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, राइट. ब्रॉट डाउन कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर. हियर बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,400, 1,10,400. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 4th वन. Goods of rupees 20,000 are purchased at 12% trade discount from Dhara stores. For this, a check of rupees 8,000 is given. तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए, राइट. डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके हिसाब से परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज गुड्स कम्स इन. तो गुड्स हमने जो परचेज किए वो 20,000 के, लेकिन 12% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, राइट, और हमें पैसे भी पे किए हैं 8,000. तो पहले ढूंढ लेते हैं 20,000 के 12%, 2,400 माइनस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2,000, 18,000 एंड देन 400, दैट इज 17,600. तो इतने गुड्स हमारे बिजनेस में आए, उसका चेक हमने दिया 8,000 का. सो लेट्स गिव द एंट्री. एंट्री नंबर अप्रैल 4, परचेज अकाउंट डेबिटेड सिंपली एट 17,600. कैसे आया? 20,000 माइनस 12%, राइट. 2, यहाँ पर हमें पैसे जो देने हैं वो टोटल 17,600 है, लेकिन हम देते हैं उनको सिर्फ 8,000 का चेक. सो बैंक इज द गिवर ऑन बिहाफ ऑफ अस, तो दैट इज 8,000 रुपीज़. To the remaining amount 17,600 minus 8,000, that is total 9,600 to Dhara store, because Dhara store sold the goods to us, that is 9,600. 9 plus 8, 17,600. Here being goods purchased at 12% trade डिस्काउंट. ये लिखने की ज़रूरत इसलिए कि आपको मालूम पड़े कि 20,000 के गुड्स थे वो इतने कैसे हो गए, इसीलिए. बाकी ये सब तो कॉमन है, आप जानते हो, लेकिन जब नोटबुक साथ में लेके बैठते हो उस टाइम भूल जाते हो, इसलिए ये आपको काम में आएगा, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द सिलेबस. अगर आप रूटीन में लिखते हो, राइट, तो उसे डिटेल में देना जरूरी है क्योंकि उस टाइम पर आपको मालूम पड़े. ओके, आफ्टर दैट वन 5th वन, withdrawn from bank ₹5,000 for office expenses and ₹4,000 for the household expenses. तो यहाँ हमने बैंक से विड्रॉ किए 5,000 रुपये ऑफिस एक्सपेंस के लिए. सी इट इज़ विड्रॉन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, इट इज़ नॉट पेड, राइट. पेड नहीं किए, हमने सिर्फ विड्रॉन किए. सो इट इज़ नोन कॉन्ट्रा,
कैश टू बैंक, लेकिन साथ में हम हाउस होल्ड के लिए भी विड्रॉ करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड के लिए ड्रॉइंग, राइट। सो सिंपली 5 अप्रैल को कहाँ जाएंगे हम, 5 अप्रैल कैश कम्स इन कॉन्ट्रा आएगा, यानी कि कैश रिसीव करते हैं हम, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है 5000, ये हम ऑफिस एक्सपेंस के लिए लाते हैं, राइट। बैंक इस तक उससे पहले ड्रॉइंग अकाउंट है, सो बिकॉज हाउस होल्ड के लिए हमने विड्रॉ किया है, राइट, वो है अमाउंट हमारे लिए 4000, राइट ना, जस्ट इट्स 4000। 2 बैंक इज द गिवर, बैंक हमको पैसा दे रहा है विड्रॉल के, टोटल है 9000, है। सो हियर बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक से हमने पैसे विड्रॉ किए, राइट। और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हो फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, है, लेकिन यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, फॉर एक्सपेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, अप्रैल 7, हियर इट इज, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹2200 जो हमने विड्रॉ किए थे, राइट, 5वीं डेट को ऊपर, राइट, ये कैश किया था विड्रॉ ऑफिस एक्सपेंस के लिए, उसमें 5000 में जो हमने 2200 ऑफिस एक्सपेंस के लिए पे कर दिया। तो ऑफिस एक्सपेंसेस दैट इज योर एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 2200, राइट। 2 हमारे पास कैश था, वही कैश हमने पे किया है उसमें से, तो कैश गोज आउट, तो 2 कैश अकाउंट 2200, so we can say being office expenses paid by कैश। स्टूडेंट्स लिख सकते हो, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हो, राइट, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो दैट इज द 7th नंबर। नेक्स्ट वन 8, अप्रैल 8 में क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ ₹4830 पेड ₹4800 इन कैश फॉर द फाइनल सेटलमेंट टू जयेश भाई। तो यहाँ सिंपल थिंग, अगेंस्ट द ड्यूज यानी हमें जो पैसे देने थे, देवा पेटे कही शकाय, राइट, पेमेंट्स इन शॉर्ट, राइट, जो 4830 थे उसमें से हमने पेड किए 4800, राइट, कैश में से। तो सिंपल है, कोई तो लेनार हसेज कहવાનો मतलब कि हियर तो जयेश भाई को सेटल किया है फाइनल अकाउंट, तो जयेश भाई इज द रिसीवर, तो जयेश भाई अकाउंट डेबिटेड क्योंकि वो पैसे लेंगे। सामने हमें पे करने थे 4830, पे करे 4800, सो 30 रुपीज़ दैट इज़ आवर अलाउंस, राइट। अलाउंस लिखो, छोटी अमाउंट है, और वैसे भी आगे के समय भी हमने अलाउंस लिखा था, तो यहाँ भी अलाउंस आने देते, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिसीवर, जयेश भाई इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, तो 8 डेट जयेश भाई अकाउंट डेबिटेड। सी हमको उन्हें पे करने 4830, क्योंकि जब हमने उनसे गुड्स परचेज किए होंगे तब उनका नाम इस अमाउंट से क्रेडिट हुआ होगा, तो इसी अमाउंट से हम डेबिट करते हैं। 2 कैश गोस आउट, हम उसको कैश पे करते हैं उनको, हम उनको टोटल अमाउंट पे करते हैं बाय कैश, दैट इज 4800 रुपीज़, इजंट इट? यस स्टूडेंट्स। ऑल्सो 2 allowance, that is amount of ₹30 only, right? Being amount paid or being paid against the dues by cash, doesn't matter, आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन paid against dues लिखना जरूरी है। नेक्स्ट वन I think 9, yes it's 9th. Due to fire in godown, goods of ₹3200 is burnt by fire, an insurance company has accepted a claim of ₹2600 for the same. So आग लग गई, राइट, 3200 का गुड्स जल गया। इंश्योरेंस कंपनी जो कि हमने अभी उनसे पैसे रिसीव नहीं किए,
तो हमारे लिए वो गिवर है, लेकिन जब तक वो पैसे नहीं देते तब तक हमारे लिए वो डेटर है, राइट। तो उनका नाम हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। क्लेम हमारा पास हुआ 2600 का, हालांकि 3200 के गुड्स बंद हो गए थे, क्लेम पास हुआ 2600 का, तो बाकी का 600 रुपये हमारे लिए लॉस है, दैट इज लॉस ड्यू टू फायर। ओके, सो सिंपल। First of all, total amount which is receivable from the insurance company, okay, that is here, that is our debtor। जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक वो हमारे डेटर है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 3200 रुपीज़, राइट। सॉरी, हमें तो 2600 लेने हैं ना, आई थिंक इट्स मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, राइट, दैट इज 2600 रुपीज़। ओके, आगे लॉस हुआ है, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट कितना हो रहा है लॉस? 3200 के गुड्स थे, बाकी रहा वो 2600 का, हमारा क्लेम पास हुआ 600 टू, यू विल हैव टू राइट डाउन परचेज बिकॉज द गुड्स आर नॉट सोल्ड आउट, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग द नेम ऑफ द सेल्स अकाउंट, वी आर नॉट गिविंग बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट उतना परचेज किया हुआ गुड्स कम हुआ है, सो परचेज में से कम होगा टोटल 3200 के गुड्स, राइट। So you can write down being goods of rupees 3200 destroyed by fire, right? और पूरा नहीं लिखना है, तो सिर्फ इतना goods destroyed by fire। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ रुपीज़ 2600, तो अपने आप बाकी का लॉस आ जाएगा। पहले हम लिखते थे, यानी आप लिखते होगे उसमें जो हमने टोटल जनरल की एंट्रीज ली थी उसमें। नेक्स्ट वन, 10th वन, yeah, goods of rupees 6600 are purchased from Anil Traders, and towards this payment of rupees 2600 is made in cash। तो पहले तो हमने उनसे गुड्स परचेज किया अनिल ट्रेडर्स से, राइट, 6600 के, उसके सामने हमने पेमेंट किया सिर्फ 2600 का, यानी 4000 का पेमेंट बाकी रखा है। तो सिंपल, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट, द नेम ऑफ द गिवर दैट इज आवर क्रेडिटर अनिल ट्रेडर्स है, बाकी के पैसे कैसे जा रहे हैं, कैश गोज आउट। सो 10th नंबर में हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंट। कितने गुड्स हमने परचेज किए हैं? टोटल 6600। सामने हम कैश पे करते हैं टू कैश अकाउंट, राइट, दैट इज 2600। तो बाकी के गुड्स कौन है? नाम अनिल ट्रेडर्स, ही इज द गिवर। सो टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट 4000 रुपीज़। being goods purchased and paid cash। ज़्यादा लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स एंड कैश पेड रुपीज़ 4000, सॉरी 2600, तो बाकी की अमाउंट अपने आप अनिल ट्रेडर्स पर क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट वन, 12th, here 12th April pay rupees 4800 for shop rent and rupees 6000 for house rent। तो ये दोनों एक्सपेंस है, ये शॉप का है यानी बिजनेस का, ये घर का है यानी ये ड्राइंग है। सो दोनों एक्सपेंसेस पेड होता है, एज यू नो दैट वन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो कैश होती तो हम बैंक से चाहते। सो 12th में लिखेंगे पहले शॉप रेंट, शॉप रेंट हमने पे किया है 4800 का, और घर का रेंट भी देते हैं। सो उसका हम नाम नहीं लिखते, उसके लिए हमने अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 6000 रुपीज़। बोथ द एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू कैश, राइट। सो दैट इज 6 + 4 10,800 रुपीज़। Being shop rent and being shop and house rent paid by cash or paid, चले, you can write down
डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पर हम जाते हैं, एंट्री नंबर 13, हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। पे ₹4,000 टू अनिल ट्रेडर्स बाय चेक। तो ऑलरेडी हमने पूरा सम किया है एग्जाम्पल, तो आपको मालूम है अनिल ट्रेडर्स से हमने 10th को परचेस किया था सी, तो अब उसको हम पे करते हैं 4,000, राइट। सो सिंपल, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कैसे पे करेंगे। अनिल ट्रेडर्स आर द रिसीवर, सो हियर अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 4,000, right? 2 cash goes out, through the cash we are paying the amount, so cash goes out 4,000। अगर स्टूडेंट्स ऐसा बोला होता हमको एग्जांपल में कि पेड टू अनिल ट्रेडर्स बाय चेक, अच्छा सॉरी, हाँ हियर वंस अगेन द मिस्टेक इज डन, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोला होता कि द अमाउंट इज पेड टू अनिल ट्रेडर्स, राइट, और पेड टू अनिल ट्रेडर्स बाय चेक, इतना बोला होता तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कौन सी अमाउंट पे करी है हमने। तो जितनी अमाउंट हमने उनको परचेज उनसे किया था उतनी 4,000, सी यहाँ पर 4,000 पे करने, उतनी अमाउंट हमने यहाँ पे की है, राइट। सो टू बैंक अकाउंट, स्विंग पेड टू अनिल ट्रेडर्स, so that's all from particular journal entry. Now next and last step, that is total up. Okay, start making total up of this, right? It's very easy with the calci, you can use that one. Okay, so already we have 1,10,000 plus 17, 27, 4 plus 2, 41 plus 17, 58 plus 10, 68, 1,68,000, राइट। 1,68,000 ये ऐड किए होने के बाद 1,68,000 यहाँ पर कुछ है नहीं 800 के सिवा, तो इस 1,68,630, तो 1,68,630, 1,68,630, डोंट फॉरगेट, राइट, कि दोनों टाइप करना है। So that is the amount. So that's all from the journal. Okay, 30 आपको मालूम है ये अमाउंट है, राइट, उसकी वजह से 30 आएगा, भूल मत जाना। So this is the total of the journal. Now the next point, that is our ledger and posting. Let's begin with the total number of ledgers. कितने हैं देख लेते हैं, पहले तो कैश कितनी बार आया है वो देख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट याद रखना। ओके, टोटल अभी के लिए हम देख लेते हैं 1 2 3, रिपीट 4 5 6, रिपीट 7, रिपीट 8, रिपीट 9, रिपीट 10, रिपीट 11, रिपीट 12, 13 14, रिपीट 15, 16, रिपीट ओके 16 अकाउंट बने हैं, टोटल 16, राइट। सो कितनी बार कैश वर्ड यूज हुआ है डेबिट क्रेडिट, उसके हिसाब से कैश अकाउंट ड्रॉ करना है, भूल मत जाना, राइट। अब देख लेते हैं कैश और बैंक, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस ही है। कैश डेबिट कितनी बार हुआ है, 1 2, क्रेडिट 2 1, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 5 बार क्रेडिट हुआ है, नहीं, और डेबिट 3 बार हुआ है, सिंपल। और एक ट्रांजेक्शन भी होगा शायद हमने जो डिपॉजिट किया था वो, तो 6 बार हो रहा है आई थिंक। ओके, तो 6 टाइम्स हम उसको क्रेडिट करते हैं कैश को, तो यानी हाईएस्ट कैश का बनाना पड़ेगा हमें, मैक्सिमम 6 लाइन तो बनानी पड़ेगी, राइट। उसके ज़्यादा नहीं बनाएगा तो चलेगा, तो और एक लाइन हमारा जो इन्फॉर्मेशन हो, तो 7 लाइन का कैश बनेगा। उसके बाद बैंक में आई थिंक बहुत है नहीं, ओके 2 या 3 ट्रांजेक्शन थे बैंक के, मे बी उसको हम देख लेते हैं फिर भी एक बार कि बैंक का कितना है। बैंक के 3 या 4 होंगे शायद, आई थिंक सो, राइट, उससे ज़्यादा नहीं है, 4 है आई थिंक। डेबिट तो बहुत हुआ नहीं क्योंकि हमने बैंक में बहुत पैसे नहीं डाले, लेकिन क्रेडिट देख लेते ऑन द बेसिस ऑफ दी एंट्रीज, राइट।
डेबिट हुआ। चलो 1 2 3, यहाँ 3 बार बता रहा है, 4 बार है आई थिंक, उससे ज़्यादा नहीं है, राइट। बिकॉज अनिल ट्रेडर को एक चेक दिया था हमने, वो हमने ड्राइंग किया था। शॉप रेंट वाला आई थिंक ट्रांजेक्शन था, ओके उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो वो कैश से ही हम पे करते हैं, ओके। तो उसके बाद और तो कोई है नहीं। एक ट्रांजेक्शन जो 5th डेट को था वो बैंक से था, और एक जो हमने परचेज़ किया था वो आई थिंक यस। तो 4 है, दैट्स ऑल। तो 6 का कैश का बनेगा, 4 का 6 का कैश का बनेगा और 4 का बैंक का। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। परचेस का भी देख लेते हैं क्योंकि परचेस कई बार आया है इसमें। परचेस तो डेबिट ही होता है, क्रेडिट साइड की एंट्री एक ही है तो नहीं देखेंगे। तो 1 2 ओके, और सामने का भी देखना पड़ेगा कितना उनसे लिया है, राइट। और बैंक और कैश से भी आएंगे 2 जैसे परचेज यहाँ पर 2 है, राइट। तो ये 2 लाइन काउंट करनी है, तो 2 आया तो डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैश और बैंक दोनों साइड है। सो 4 बिकॉज यहाँ कैश से होता है, सी, राइट। तो 4 आर गेटिंग द पॉइंट, टेल मी इन माई सेशंस के कैसे ये हो रहा है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अकाउंट एक ही डेबिट हुआ है, लेकिन उससे क्रेडिट अकाउंट 4 है ना, तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। वैसे ही कैश में भी था, बैंक में भी था, बस हाईएस्ट ये है, बाकी के तो सब 1 1 2 2 है। शायद सेलिंग का 2 आएगा, ओके। तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेजर पोस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विथ द पोस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल 2016 अप्रैल 1 में कैश अकाउंट डेबिटेड 40,000 फर्नीचर एंड कैपिटल। तो मूव टू द कैश अकाउंट डेबिट साइड, हमको लिखना है 40,000, ओके। सो हियर cash account debit side, don't forget to give the date because here date is there 2016 April, right। amount of that one 1st April को, right। opposite entry आएगी to capital account। जो उसके सामने था वही अमाउंट लिखना है, कैश के सामने था वो अमाउंट, हाँ। कैपिटल के सामने वाला अमाउंट नहीं लिखना है, डोंट फॉरगेट, बारी बारी में बोलता हूँ। सो दैट इज 40,000, ओके। नाउ एज पर आवर सेकंड मेथड, सीधा चले जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल कैश में डेबिट साइड है, तो यहाँ जो लिखा है अकाउंट कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर, कैपिटल के क्रेडिट साइड पर सेम, राइट। 2016 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट, राइट। यहाँ पर जो कैपिटल के सामने वो भी फिर से नहीं लिखना है, जो हमने कैश में लिखा है वही लिखना है, राइट। वो याद रखना, क्योंकि कैपिटल के सामने जो अमाउंट आएगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा, राइट। दैट इज़ 2, ओके। 60,000 होगा इसीलिए। तो कीप इन माइंड, जो हम अकाउंट लिखते हैं उसके रिलेटेड जो है वो, फिर वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना कि कैपिटल के सामने कैपिटल का अमाउंट क्यों नहीं लिखा, तो अकाउंट उसके रिलेटेड जो सामने है ऑपोजिट वो 2 है इसीलिए, ओके। दूसरा था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, राइट, टू कैपिटल। सो ड्यू टू द स्पेस फर्नीचर मैंने लास्ट में ड्रॉ किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। वंस अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2016, राइट, अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट, राइट। अमाउंट है 20,000 रुपीज़। डोंट फॉरगेट अपोजिट एंट्री है वही लिखनी है हमें, 20,000 रुपीज़। नाउ वंस अगेन मूविंग टू कैपिटल अकाउंट, हम पूरे अमाउंट को साथ लेंगे। यहाँ पर फिर से कैपिटल अकाउंट में आएंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल। वैसे भी देखे जाओ तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। वंस अगेन अप्रैल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया है, राइट। दोनों साइड मत लिखना, राइट। जिस साइड एंट्री आती है उसी साइड लिखना, दोनों साइड बाद में लिखेंगे अब जब मैं बताऊँगा। यहाँ लिखो बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। तो बाय डिफॉल्ट देख लो होगा 60,000 कैपिटल जो हमने क्रेडिट किया था, दोनों अमाउंट, इसीलिए हमें वो अमाउंट नहीं लिखना है टोटल क्रेडिट का, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश टू सेल्स और डबल टू सेल्स, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड 15,000, डबल स्टोर्स डेबिटेड 17,400 और सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 32,400। तो सेल्स में हमें 2 अकाउंट क्रेडिट करने हैं, यानी क्रेडिट साइड पर 2 अकाउंट लिखने हैं, ओके। और कैश में एक, डबल स्टोर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट डेबिट साइड अपोजिट सेल्स 15,000। सो कैश अकाउंट मैंने ड्रॉ करके रखा है, हियर इट इज
द कैश अकाउंट, राइट। उसकी डेट जो आती है वो सेकंड डेट आती है, राइट डाउन हियर अप्रैल 2 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट। जितनी अमाउंट कैश में है वही, कैश में अमाउंट कितनी है हमारी 15,000, तो यहाँ लिख दो 15,000। यहाँ लिखा है सेल्स अकाउंट, तो डायरेक्टली सेल्स अकाउंट में चले जाते हैं। हियर द सेल्स अकाउंट इज दैट सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। ऑपोजिट एंट्री आएगी 2016 अप्रैल 2 बाय कैश अकाउंट 15,000, राइट। सो ये एक एंट्री मैंने दी। अब दूसरी एंट्री है जो आती है सेल्स में, दैट इज धवल स्टोर्स का है, राइट। जो तो धवल स्टोर्स के डेबिट साइड पर धवल स्टोर्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। हियर इट इज धवल स्टोर्स अकाउंट, इट इज डेबिटेड। तो धवल स्टोर्स अकाउंट डेबिट साइड 2016 अप्रैल 2 टू सेल्स अकाउंट। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दैट इज 17,400, राइट। सो ये अकाउंट जो सेल्स है उसके नीचे ही हमने है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री सेल्स है, तो धवल स्टोर्स। तो फिर से अप्रैल 2 को यहाँ आ जाएगा बाय धवल स्टोर्स अकाउंट 17,400 हो गया। 32,400 सेल्स में क्रेडिट साइड, देख लो सेल्स क्रेडिट है 32,400, क्लियर। थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो डिपॉजिट किया था वो 18,000 टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर है, देख लो बैंक अकाउंट डेबिटेड। डेट है हमारी, फिर से एक बार देख लेना, डेट को अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि उसके हिसाब से ही जाना चाहिए। 2016 अप्रैल डेट है 3 टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 18,000 रुपीज़, ओके। टू कैश अकाउंट, तो यहाँ कैश लिखा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पर चले जाते हैं या कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पर, राइट। 2016 अप्रैल डेट है 3 बाय बैंक अकाउंट दैट इज 18,000 रुपीज़। ये हो गई एंट्री हमारी कैश बैंक की। नेक्स्ट वन हियर परचेज अकाउंट डेबिटेड 17,600। सी परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा 17,600 है, लेकिन उसके जो अकाउंट है वो दो आएंगे, टू बैंक अकाउंट टू धारा स्टोर्स अकाउंट। तो पहले जाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट साइड 4 अप्रैल को, तो यहाँ परचेज अकाउंट यहाँ पर है, देख लो परचेज अकाउंट डेबिट साइड, राइट अप्रैल 4। सो 2016 अप्रैल 4। ऑपोजिट दो एंट्री है तो लिख दो ऑपोजिट टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट है बैंक अकाउंट का, बैंक का 8,000 रुपीज़, राइट बैंक का 8,000 रुपीज़, डोंट फॉरगेट। और दूसरी जो है एंट्री जाएगी सीधी बैंक के क्रेडिट साइड पर, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा है, देख लो एज पर अवर मेथड 2 परचेज अकाउंट डेबिट साइड ऑपोजिट एंट्री टू बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगी ऑपोजिट एंट्री परचेज, तो यहाँ पर आएगा, राइट ये बैंक अकाउंट है। सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड 2016 अप्रैल 4 बाय परचेज अकाउंट 8,000। और दूसरी एंट्री सेम थी परचेज अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पर ही परचेज अकाउंट डेबिट साइड टू धारा स्टोर्स। तो फिर से 4th डेट को टू अपोजिट एंट्री को देखो तो हाँ टू धारा स्टोर्स अकाउंट्स दैट इज 9,600। धारा स्टोर ड्यू टू पर्टिकुलर स्पेस मैंने पीछे ड्रॉ किया है, ओके। सो धारा स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर है, ओके। सो क्रेडिट साइड पर धारा स्टोर्स पर लिखना है परचेज अकाउंट, दैट इज धारा ट्रेडर्स आई थिंक, वॉट एवर जो भी नाम है देख लेना है, स्टोर्स या ट्रेडर्स, राइट। सो धारा ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड पर 2016 अप्रैल, डेट कौन सी है 4th अप्रैल, राइट। सो राइट डाउन हियर 4th अप्रैल धारा ट्रेडर्स का क्रेडिट साइड पर 4th अप्रैल को आएगा बाय परचेज अकाउंट, राइट। अमाउंट जो हमने सामने लिखा है परचेज में धारा स्टोर्स के वही 9,600, राइट हियर ये वाला, ओके। सो ये एंट्री आ गई हमारी 4th अप्रैल की। 5th अप्रैल पर जाते हैं हम। कैश अकाउंट डेबिटेड आपके पास है, कैश डेबिटेड ड्राइंग डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
सो पहले कैश में जाएंगे यहाँ पर। अब हम दोनों साथ में एंट्री देता हूँ तो उसकी भी आपको मेथड मालूम पड़ जाए, राइट। कैश अकाउंट डेबिटेड, ओके, अप्रैल 5th। तो कैश अकाउंट पर डेबिट साइड पर आएगा 5th डेट पर टू बैंक अकाउंट, राइट। सो बैंक अकाउंट है जितना, राइट, कैश जितना हमने उस पर डाला है दैट इज़ 5000। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, सो ड्राइंग अकाउंट ड्यू टू ओनली 1 or 2 एंट्रीज, ओके, इट इज़ बैक साइड हियर ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट साइड 2016 अप्रैल 5th टू बैंक अकाउंट कितना हमने ड्रॉ किया है अमाउंट, ओके, दैट इज आई थिंक फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, मे बी इट इज़ फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेस ओनली। सो उस जो टोटल अमाउंट हमने लिया है वो है 4000 रुपये। नाउ बोथ द एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक में हमने क्रेडिट किया है टू बैंक अकाउंट टोटल 9000, लेकिन हम बैंक में टोटल 9000 नहीं लिखेंगे, ऑपोजिट ये दोनों एंट्री लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड हियर, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट एंट्रीज दोनों बाय कैश अकाउंट दैट इज 5000 एंड 5th वन बाय ड्राइंग अकाउंट 4000। आ गए बाय डिफॉल्ट बैंक में 9000, 5 + 4 9000, ओके। नाउ 7th ऑफिस एक्सपेंस जो हमने पेड किया था वो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो मूविंग टुवर्ड्स द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, राइट, ओनली 1 एंट्री इज देयर, इट इज हियर ऑफिस एक्सपेंस, देख लो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, ओके। सो डेबिट साइड 2016 अप्रैल 7th, राइट, यस इट्स 7। लिखो 2 हम कैश से पे करते, जो कैश आया था वो, ऑफिस अकाउंट्स हम पे करते हैं टोटल 2200, ओके। सो दैट इज 2200 कैश में जाएगा, वी आर पेइंग थ्रू द कैश। तो 2 कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड अप्रैल 7 बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 2200, दैट्स ऑल। नाउ जयेश भाई आ गए। जयेश भाई अकाउंट डेबिटेड विथ 4813। तो ये तो उनका डेबिट साइड का हुआ, लेकिन जो सामे बे एंट्रीज से બંને ક્રેડિટ થાય છે ટુ કેશ અકાઉન્ટ ટુ અલાઉન્સ। તો सीधा જતા રહીએ છીએ આપણે જયેશભાઈના અકાઉન્ટમાં 8 डेट જયેશભાઈ's અકાઉન્ટ, હિયર ઇટ ઇઝ જયેશભાઈ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ 2016 એપ્રિલ 8। બંને એન્ટ્રી હું લખી દઉં છું, એટલે એક નવી તમને અત્યારે એક માહિતી મળે છે કે બે એન્ટ્રી સાથે કેમ નહીં આવે। सो टू कैश अकाउंट जो हमने लिखा है, तो कैश अकाउंट कितना लिखेंगे, कैश हमसे रिसीव हुई है, हमने पे किए 4800, और दूसरा सेम डेट को अलाउंस होता है, तो 2 अलाउंस अकाउंट 30। तो जयेश भाई के अकाउंट में दोनों आ गए डेबिट। अब ये दोनों अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा जयेश भाई। तो पहला अलाउंस है यहाँ पर, तो लिख दे यहाँ पर अलाउंस में, हियर इट इज़ अलाउंस अकाउंट है ही मेरे पास। तो अलाउंस अकाउंट क्रेडिट साइड आपने एंट्री दी, आपको मालूम है 2 अलाउंस अकाउंट 30, अपोजिट एंट्री जयेश भाई, राइट। तो यहाँ लिखते थे 2016 अप्रैल 8 बाय जयेश भाई अकाउंट, ये जो एंट्री आती है वो 30। और दूसरी जाएगी कैश के क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 2 कैश अकाउंट, अमाउंट है हमारी 2 कैश अकाउंट में 4800, अपोजिट अकाउंट देख लो आपके पास जनरल एंट्री है दैट इज़ जयेश भाई। तो 8 डेट को बाय जयेश भाई अकाउंट 4800, ये हो गया स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 8। 9th नंबर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड ₹2600, जो मिस्टेक हुआ था, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 600 और टू परचेस अकाउंट 3200। तो यहाँ पर 2 अकाउंट डेबिट हो रहा है, 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में 2600, हियर इट इज़ अप्रैल 9 में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट मैंने ड्रॉ करके रखा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 9 अप्रैल, तो 2000 अप्रैल 9। यहाँ आएगा 2 परचेस, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट परचेस है, लेकिन जितना इंश्योरेंस कंपनी से हमने मिलने वाले वही अमाउंट लिखो 2600। चले जाते हैं सीधे परचेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। परचेस अकाउंट यहाँ पर है, देख लो परचेस अकाउंट क्रेडिट साइड पर, राइट, 2016 अप्रैल 9 बाय
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2600, ये एक एंट्री थी मैंने सेपरेटली। दूसरी लॉस ड्यू टू फायर, राइट। सो हियर दोनों साथ में जा रहा हो तो आपको कोई भी एंट्री लेनी हो ले सकते हो। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड, राइट। सो 2016 अप्रैल 9, ये दोनों साथ में देखो, साथ में देते तो भी चलता। टू परचेज अकाउंट, जो हमने लॉस किया है वो मीन्स हमें लॉस हुआ है 600। फिर से जाएंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर राइट सेम डेट लिख दो। बाय लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 600, बाय देख लो डिफॉल्ट परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड पर टोटल अमाउंट होनी जाए 3200, आगे 3200, दैट्स ऑल। आगे 10 अप्रैल परचेज अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट है ₹6600। दो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट, कैश अकाउंट एंड अनिल ट्रेडर्स। तो दोनों को हम क्रेडिट एक साथ कर देंगे और दोनों के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो पहले परचेज अकाउंट पे आ जाता है, हियर इट इज परचेज अकाउंट डेबिट साइड, डेट नंबर 10। दो अकाउंट है, डोंट फॉरगेट। टू कैश अकाउंट बिकॉज वी रिसीव्ड कैश, सॉरी वी पेड कैश, दैट इज 2600। और दूसरा है टू जो अनिल ट्रेडर्स है, राइट। सो टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, राइट, वो आ रहा है हमारा 4000। जो दोनों एंट्री मैंने साथ में दे दी। अब रिस्पेक्टिवली दोनों अकाउंट में जाएंगे, पहले जाएंगे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, बिकॉज ये परचेज में डेबिट लिखा है, तो यहाँ जो अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पर डेट 10th, बाय परचेज अकाउंट, राइट, अमाउंट लिखेंगे हम 2600। दूसरा नाम था अनिल ट्रेडर्स, राइट। सो अनिल ट्रेडर्स में चले जाते हैं। अनिल ट्रेडर्स, राइट, यहाँ पर है, देख लो अनिल ट्रेडर्स। सो अनिल ट्रेडर्स क्रेडिट साइड पर 2016 अप्रैल 10th, इफ आई एम राइट, यस इट इज़ अप्रैल 10th। यहाँ लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट 4000, ओके। सो अनिल ट्रेडर्स का एक और भी एंट्री है, तो डोंट फॉरगेट, ओके। नेक्स्ट वन 12th शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड 4800, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 6000, कैश। तो पहले शॉप रेंट और ड्राइंग में चले जाते, राइट, कैश में डायरेक्ट लेके 4800। हियर इट इज, आई ड्रॉ हियर शॉप रेंट अकाउंट। तो शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट साइड पर 2016 अप्रैल 12th डेट। यहाँ लिखो टू बिकॉज वी पेड थ्रू कैश, टू कैश अकाउंट, राइट, जो भी 12 है हम कैश से पे करते हैं 4800, राइट डाउन हियर 4800। जो अदर एंट्री है वो ड्राइंग की है, राइट। सो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर है। वंस अगेन वी विड्रॉन मनी, सो 12th डेट पर टू कैश अकाउंट, जो अमाउंट बाकी रहता है वो कितना है, राइट, दैट इज ऑफ 6000, डन। अब जाएंगे हम कैश में, बिकॉज दोनों कैश से होता है। कैश अकाउंट यहाँ डेबिट किया, कैश अकाउंट यहाँ भी डेबिट किया, मीन्स ड्राइंग में और शॉप रेंट में। तो रिस्पेक्टिवली दोनों अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज वी रोट द एंट्री दैट शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन दोनों ऑपोजिट एंट्री क्या है, शॉप रेंट एंड ड्राइंग, तो दोनों की दोनों एंट्री लिखनी पड़ेगी। बाय शॉप रेंट अकाउंट 4800 एंड बाय ड्राइंग अकाउंट 6000, दैट्स ऑल। लास्ट एंट्री अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बिकॉज वी पेड थ्रू द बैंक। सो मूविंग टुवर्ड्स द अनिल भाई का अकाउंट है यहाँ पर, यस अनिल ट्रेडर्स मेरे सामने ये रहा, सॉरी ये रहा अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड, राइट, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड, राइट, 13 डेट। तो 2016 अप्रैल 13, वो हमें यानी कि हम उनको बैंक से पे करते तो वो हमारे क्रेडिटर होते, मीन्स थे। सो दैट इज़ 4000। सो देख लो ये तो बंद हो गया, यानी हमें उनको पैसे देने थे वो हमने दे दिया, दैट्स ऑल। लेकिन दूसरी जो एंट्री है थ्रू द बैंक जाएगी, बिकॉज वी पेड थ्रू द बैंक। सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर, कहाँ पर, हियर इट इज़, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पर। लास्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ 13 बाय अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, दैट इज 4000।
1000 rupees. So that's all from this particular ledger of Panchal stores. Right here all entries are given. You will get the photocopy of this one, that means के image of this one, so easily. Okay, so यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आइडिया आ रहा है ये क्या है, देख लो। कैश हम सब कुछ यही लिखते थे हमारे कैश बुक में, और बैंक सब कुछ यही लिखते थे बैंक में, बैंक बुक में, यानी कैश एंड बैंक टू कॉलम में। तो ये सिर्फ कॉलम ऐड हो जाता था उसमें, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहता था ना, राइट, सिंपल। सो ये हो गया एंड अप द पर्टिकुलर जर्नल एंट्री का दो इलस्ट्रेशन, दो एग्जाम्पल, और सेपरेटली जो एक एक दो दो एग्जाम्पल के तौर पर हमने इलस्ट्रेशन किए हैं, वैसी बहुत सारी एंट्री भी हो गई है। सो इजीली आपको मालूम होगा कि हाउ टू गिव द पर्टिकुलर लेजर पोस्टिंग थ्रू द जर्नल एंट्री। ओके, मैंने मेथड 1 जो बुक के हिसाब से उसके हिसाब से गए, उस दूसरी 2 मेथड सिखाई, जो सेकंड 1 थी वो बेहतर रहेगी, और जो थर्ड 1 थी जो डायरेक्टली हम डेबिट एक से ज़्यादा अकाउंट हो रहे हैं तो वहाँ अलग अलग लेते थे, यहाँ मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ वॉट एवर विच एवर यू लाइक। सो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। पहले हम उसकी थियरी देखेंगे, उसका इलस्ट्रेशन, उसके बाद उसके एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल ही है परचेज सेल्स बुक का, राइट, कॉलमनर वाला नहीं है। सो उसको ही देखेंगे इलस्ट्रेशन 3-4 के बाद। उसके बाद हम जाएंगे फिर से थियरी के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, देन आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर विद द बैलेंसेस। ओके, सो फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 6 हमने किया वो अपने पास रखना, फिर से एक बार देख लेना, इसकी ज़रूरत लास्ट में पड़ेगी, मैं फिर से इसके हिसाब से कुछ काम करवाने वाला हूँ, राइट, तो इसको लिख देना कंप्लीटली। सो दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आओ सो सिंपली ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनरल एंट्री कोई इन्फॉर्मेशन अभी बाकी रहती नहीं है। जनरल एंट्री आपको आता है कैसे ड्रॉ करना है, सो आपको यहाँ ध्यान रखना था खास रिलेटेड टू दैट लेज़र पोस्टिंग का, जो हमने कर दिया है। अब जो जाएंगे वो फिर से एक बार बताना इसलिए चाहता हूँ कि आप थोड़ा उसके ऊपर देख लो, राइट। वो हमारा है पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। थियरी बहुत कम है, सीधा हम इलस्ट्रेशन पर ही जाएंगे। थियरी आपको मालूम है सब्सिडरी बुक से कैसे हम परचेज और सेल्स बुक बनाते हैं, राइट। सो ऑलरेडी डिस्कशन वर डन। डायरेक्टली वी विल टेक द सिंपल टाइप ऑफ द सब्सिडरी बुक, ओके, एंड देन आफ्टर गिव द पोस्टिंग। ये तो बहुत इजी पोस्टिंग होगा उसका, बहुत भी इजी होगा, राइट। और उसके बाद जाएंगे थ्रू दी अदर परचेज सेल्स दोनों साथ में, ओके। उसके बाद एंड अप करेंगे ये सब्सिडरी बुक को भी, क्योंकि कैश बुक का जो भी है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो today we completed that example number 6 with the help of the different 16 posting of that different अकाउंट्स, राइट। 16। और कीप इन माइंड वंस अगेन, जो आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, पहले ही काउंट कर लो और इट शुड बी इन सीक्वेंस, राइट। कभी कभी प्लस माइनस 1-2 नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन जब आप अकाउंट प्रिपेयर करो तो इट शुड बी इन सीक्वेंस। जैसे ही आपने जनरल एंट्री लिखी है उसके हिसाब से, तो मिस्टेक ना हो, इसीलिए कोई एरर क्रिएट ना हो, इसीलिए हमें उसको सीक्वेंस में ही ले जाना है। सो जैसे जैसे आप अकाउंट ड्रॉ करो वैसे वैसे उसके आगे कुछ लिखना शुरू कर दो पेंसिल से, 1 2 3, तो आपको मालूम पड़े, तो आपको जब एंड अप हो जाए है तो उसके बाद शायद आपको फिर से काउंट करना पड़े, सिंपल है। और कैश और बैंक का फिर से बोलता हूँ ज़्यादा ही रखना, एवरेज ऑन एन एवरेज उसका 8 to 10 होता ही है, राइट। लेकिन आपको मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री जो रिसिप्ट या पेमेंट, जो भी कैश रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो, उसके हिसाब से आपको देनी है। सो प्लस माइनस 1-2 लाइन चलेगी, लेकिन अगर आपने 8 ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट हो रहे कैश के और 10 डेबिट हो रहे और सिर्फ आपने 8 ही लाइन ड्रॉ की, तो बाकी के 2 अकाउंट्स कहाँ लिखोगे, ओके। सो जितनी लाइन है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, कभी कभी आप जल्दी में भूल जाओगे, तो जितनी भी लाइन आपने काउंट की है उससे एक जो ज़्यादा ही रखो, राइट। और आगे भी बैलेंस आएगा, सो और भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो पहले से 8 अकाउंट डालने आपको, तो 10 लाइन ड्रॉ करके रखो, राइट। सो शायद एक आध मिस्टेक हो जाए तो भी ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज़ दैट कि बैंक के भी ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसको भी ध्यान पे लेके चलो। और ऐसा लगता है
तो कैश और बैंक फर्स्ट में ड्रॉ कर लो। वैसे भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले कैश से ही होगा, सो कैश और बैंक है, उसके बाद सब सीक्वेंस में जाने दो तो भी चलेगा, क्योंकि कैश और बैंक का बड़ा आएगा। समटाइम्स परचेज अकाउंट इज़ ऑल्सो अ बिग, राइट। सो क्योंकि कई बार हम अब जो गुड्स देते हैं वो परचेज के थ्रू देते हैं तो क्रेडिट भी होता है, सो डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर परचेज सेल। लेकिन काउंट करने के बाद ही आगर जाओ, एना वक्त आगर जसो नहीं। कैपिटल में भी आप एक ही साइड पर काउंट करोगे, लेकिन उसके डेबिट अकाउंट भी काउंट करने हैं तो कैपिटल भी 2 या 3 से ज़्यादा होगा। ओके, so that's the end of our discussion 2. In next session I will start the subsidiary book. Okay, just keep in mind that point also. Thank you.